जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंद और खुशी मनाएं। परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करें और उसको धन्यवाद देते हुए उसके सानिध्य में आए। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय सेनाधीश परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना सभा के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु पिता, हालेलुया, तेरी प्रेमतया, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु, तेरे किए हुए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए हम तेरे सानिध्य में आते हैं। और परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित सारे विश्वासियों को प्रभु और हर एक परिवार को तेरे पवित्र हाथों में मैं समर्पित करता हूं। और आज की सभा शुरू से लेकर अंत तक तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु जी। और हम तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हफ्ते भर में प्रभु हम सबों ने तेरे विरोध में जो कुछ प्रभु परमेश्वर जाने अनजाने में पाप किया है, प्रभु गलत विचार किया है, प्रभु जो कुछ तेरे नजर में गलत किया हमें क्षमा कर और तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। और प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता, आने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तो अपना आशीष और अभिषेक रख दे प्रभु। और स्वर्गीय आनंद और शांति और खुशी प्रभु हर एक के दिल में उड़ेल दे प्रभु। ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आदर और महिमा सम्मान देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। तू सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக ஒரு சில கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கண்மணி போல காத்து இந்த வாரத்தின் அல்லது பரிசுத்த ஆராதனை தேவன் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்த்த மகா கிருபைக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை நாம் படிப்போம். முதலாவதாக காப்பார் காப்பார், இது பழைய பாடல், டிஜிஎஸ் தினகரன் அவர்கள் எழுதிய பாடல், ஒரு கருத்துள்ள பாடல். தெரிந்தவர்கள் பாடுங்க, தெரியாதவர்கள் கேட்டு திருப்பி படிங்க. காப்பார் காப்பார், காத்தவர் காப்பார், இன்னும் இனிவேலும் காத்திடுவார். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஜீசஸ். காப்பார் காப்பார், காத்தவர் காப்பார், இன்னும் இனிமேலும் காத்திடுவார். கலங்காதே மனமே, காத்திடுவார். காப்பார் காப்பார், காப்பவர் காப்பார், இன்னும் இனிமேலும் காத்திடுவார். கலங்காதே மனமே, காத்திடுவார். கண்டுன்னை அழைத்தவர் கரமதை பார், உன்னை கைவிடாதிருப்பார். ஆண்டுகள் தோறும் உனக்களித்த ஆசிகளை எண்ணிப்பார், 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 அதையும் அதை எண்ணிப்பார். காப்பார் காப்பார், காத்தவர் காப்பார், இன்னும் இனிமேலும் காத்திடுவார். கலங்காதே மனமே, காத்திடுவார். இஸ்ரவேலுக்கு வாக்குப்படி என்ப கானான் அளிக்கவில்லையோ, இப்போது இவர்களை நிர்மூலம் செய்வதென்று பின்னும் இறங்கவில்லையோ, இல்லையோ, 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 மனஸ்தாபம் கொள்ளவில்லையோ.
இஸ்ரவேலுக்கு வாக்குப்படி என்ப காணானளிக்கவில்லையோ, இப்போது இவர்களை நிர்மூலம் செய்வதென்று பின்னும் இறங்கவில்லையோ, இல்லையோ இல்லையோ இல்லையோ, மனஸ்தாபம் கொள்ளவில்லையோ, காப்பார் காப்பார் காத்தவர் காப்பார், இன்னும் இனி மேலும் காத்திடுவார். கலங்காதே மனமே காத்திடுவார். வீழ்ச்சியில் விழுந்துன்னை மீட்பவரோ, நிகழ்ந்து விடாது சேர்ப்பவரோ, சீச்சில வேளையில் சீச்சையின் நாள் உன்னை கிட்டி எழுப்பவரோ, ஜயமும் கனமும் சுகமும் உனக்கென்று அளிப்பவரே, வீழ்ச்சியில் விழுந்துன்னை மீட்பவரும் நிகழ்ந்து விடாது சேர்ப்பவரோ, சீச்சில வேளையில் சீச்சியாது கிட்டி எழுப்பவரோ, ஜயமும் கனமும் சுகமும் உனக்கென்று அளிப்பவரே, காப்பார் காப்பார் காத்தவர் காப்பார், இன்னும் இனி மேலும் காத்திடுவார். கலங்காதே மனமே காத்திடுவார், கலங்காதே மனமே காத்திடுவார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நன்றி, சோத்திரம் ஆண்டவரே, சோத்திரம் சோத்திரம் ராஜா. அடுத்ததாக மற்றொரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அந்த பாடல் பகிர்ந்துபட்டிருக்கிறது. எந்த தேவனால் எந்த தேவனால் நிச்சயமா நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்வேன். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். ஹல்லேலூயா. நன்றி நன்றி ராஜா. தேங்க்யூ ஃபாதர். எந்த தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். வசனம் கை கொள்ளுவேனான், உந்தன் வழிகளில் நான் எந்த தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். தேசத்தில் ஆசீர்வாதமாயிருப்பேன், பிறையிலும் ஆசீர்வாதமாயிருப்பேன். தேசத்தில் நான் ஆசீர்வாதமாயிருப்பேன், வேலையிலும் ஆசீர்வாதமாயிருப்பேன். என் வீட்டில் ஆவார குறைவில்லையே, என் தேவைகள் ஒன்றும் தடையில்லையே. என் வீட்டில் ஆவார குறைவில்லையே, என் தேவைகள் ஒன்றும் தடையில்லையே. எந்த தேவனா நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். எந்த தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். எனக்கு எதிராய் வரும் ஆயுதமெல்லாம் நிர்மூலமாய் போய்விடும் எந்த தேவனால். எனக்கு எதிராய் வரும் ஆயுதமெல்லாம் நிர்மூலமாய் போய்விடும் எந்த தேவனால். எந்தலன் ஆரோக்கியம் தேவதானமே, எந்த சரீரம் வாசி
ஆசீர்வதிக்கப்படும். தேவதானமே எந்த சரீரம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். எந்த தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான். உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். எந்தன் தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான். உந்தன் வாழ்க்கை துணையும் என் பிள்ளைகளோ எந்த சம்பந்தம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். வாழ்க்கை துணையும் என் பிள்ளைகளோ எந்த சம்பந்தம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். என்ன நன்மைக்காய் செழி தோங்கிட செய்வார். என்னை அவர் பரிசுத்த ஜனமாக்குவார். எந்த நன்மைக்காய் செழி தோங்கிட செய்வார். என்னை அவர் பரிசுத்த ஜனமாக்குவார். எந்த தேவனா நிச்சயம் தேவனா நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். எந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான். இனி என்றும் கடன் வாங்க விடமாட்டார். கொடுத்ததை செழித்தோங்க செய்திடுவார். இனி என்றும் கடன் வாங்க விடமாட்டார். கொடுத்ததை செழித்தோங்க செய்திடுவார். உயர்வடைவேன் எந்த வாழ்க்கையிலே. உன்னதங்களில் என்னை உயர்த்திடுவார். உயர்வடைவேன் எந்த வாழ்க்கையிலே. உன்னதங்களில் என்னை உயர்த்திடுவார். எந்த தேவனா நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான். உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். எந்த தேவனா நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான். உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். விடுதலை கீதங்கள 91வது பாடல். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். சாங் நம்பர் 91. விடுதலை கீதங்கள 91வது பாடல். எல்லோரும் கைகளை தட்டி உள்ளத்தில் ஆழத்திலிருந்து படிப்போம். ஆமென். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளுக்கா எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்லி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன் என்ற பாடல். நல்லவரே நன்மைகளை நினைக்கிறேன். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். ஹல்லேலூயா ஜீசஸ், thank you father. ஹல்லேலூயா. நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன். பாடல் எண் 91 விடுதலை கீதங்கள்ல. நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன். நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன். நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா ஏசையா. நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா ஏசையா. தகுதி எல்லாம் தாங்கி தாங்கி வழி நடத்தி மகிழ்கின்றேன். தகுதி எல்லாம் அடிமை என்னை அழைக்கின்றேன். தாங்கி தாங்கி வழி நடத்தி மகிழ்கின்றேன்.
அதிசயங்கள் ஆயிரம் அன்பரேவும் கரங்களிலே, அதிசயங்கள் ஆயிரம் அன்பரேவும் கரங்களிலே. நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரேவும் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரேவும் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா. பலவீனம் நீக்கி தினம் காக்கின்றீர், பெரும் பெரும் காரியங்கள் செய்கின்றீர். பலவீனம் நீக்கி தினம் காக்கின்றீர், பெரும் பெரும் காரியங்கள் செய்கின்றீர். தீமையான அனைத்தையும் நன்மையாக மாற்றுகின்றேன், தீமையான அனைத்தையும் நன்மையாக மாற்றுகின்றேன். நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா. உணவு உடை தினம் தந்து தருகின்றேன், உண்மையான நண்பர்களை தருகின்றேன். உணவு உடை தினம் தந்து மகிழ்கின்றேன், உண்மையான நண்பர்களை தருகின்றேன். நன்மையான ஈவுகள் நாள்தோறும் தருபவரே, நன்மையான ஈவுகள் நாள்தோறும் தருபவரே. நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா. கதறி எழுத நேரமெல்லாம் தூக்கினீ, கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றேன். கதறி எழுத நேரமெல்லாம் தூக்கினீ, கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றேன். கண்மணி போல் காப்பவரே, கைவிடாத மேய்ப்பவரே, கண்மணி போல் காப்பவரே, கைவிடாத மேய்ப்பவரே. நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன், நல்லவரே உன் நன்மைகளை நினைக்கிறேன். நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா ஏசையா. அல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோதர ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனை எங்களோடு கூட இருந்து இடைப்பட்டதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோதர ஆண்டவரே. மீதியான நேரத்தை பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ராஜா, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க, தேவைகளை சந்திங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்க நல்ல பிதாவே, ஆமென். Old book, song number 267. Song number 267. यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से.
यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा कोटि श्राप से। हमने शांति पाई यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम आए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा श्राप से। तो गाओ हालेलुया,
आए आपके नाम, शांति और सलाम, यीशु का पैगाम, शांति और सलाम, आए आपके नाम, शांति और सलाम, यीशु का पैगाम। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, come on, everybody. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Song number 18.
Praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद Hallelujah. Thank you, Jesus. स्तुति करें प्रभु की उपस्थिति में, धन्यवाद करें हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है हालेलुया। खोलो, हाँ, ओपन योर माउथ, आपका मुंह खोलो, आपके होठ जुबान खोलो और प्रभु की स्तुति करें। ओ हालेलुया। न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। तो मेरे साथ, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, धन्यवाद, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे
महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम तलाश बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। प्यारे भाइयों, अपनी आंखें बंद रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें देख नहीं सका। मनुष्य जात जो पाप में फंसी वो देख नहीं सका हम लोगों को नाश होते हुए, और वो आकाश से सागर में मनुष्य बनकर आया और उसने हमें मुक्ति दी। हालेलुया। मुक्ति का दाता वो है, दुनिया को बताएंगे। थैंक यू जीसस। वो आपको देख नहीं सका, वो मुझे देख नहीं सका। हम पाप में मर रहे थे और उस परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे प्यार के खातिर दे दिया। इसलिए हमें आवाज उठाकर प्रार्थना करनी है। अरे भाई और बहनों, आप जहां भी बैठे हैं, आप प्रभु के ऊपर ध्यान लगाएं। एकमात्र दिन होता है हमारे लिए कि हम साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। इसलिए पूरे तन मन से मुंह बंद करके मत बैठना, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु से बातें करें, प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद करें। आपकी हर परिस्थिति, आपके हर दुख, संकट, कष्ट को, पीड़ा को प्रभु जानता है। बस सब कुछ उसके हाथ में सौंप दो प्यारे भाई और बहनों। अपने आप उसके शरण में जाओ, अपना जीवन उसके शरण में दे दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तेरे महान प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। न कोई था, ना कोई है। हम गीत को गाएंगे जो स्मिता ने लिखा है, ना कोई था ना कोई है, तूने खरीदा है। सिर्फ सॉन्ग नंबर 54 नए पुस्तक में, सॉन्ग नंबर 54। तूने खरीदा है मुझको पिता, लहू से यीशु के लहू से। तूने खरीदा है मुझको पिता, तूने खरीदा है मुझको पिता, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से। करता हूँ तेरा मैं शुक्रिया अदा, करता हूँ तेरा मैं शुक्रिया अदा। दिल से पूरे दिल से पूरे दिल से। न कोई था न कोई है, तुझसा न कोई होगा। न कोई था न कोई है, तुझसा न कोई होगा। क्या कोई करेगा तुझसे प्यार इतना, करे कुर्बान इकलौता बेटा अपना। क्या कोई करेगा मुझसे प्यार इतना, करे कुर्बान इकलौता बेटा अपना। न कोई था न कोई, तुझसा न कोई होगा। यीशु मसीह आया था तो स्वर्ग छोड़कर, में ना तू बलि बना था
खुश कर। यीशु मसीहा छोड़ के बेपनाह को पाले चढ़ा। खुश कर। न कोई था न कोई है तुझसा, न कोई था न कोई है तुझसा, न कोई होगा। पावन आत्मा मेरे संग रहता, हर वक्त हर पल मुझको राह दिखाता। पावन आत्मा मेरे संग रहता, हर वक्त हर पल मुझको राह दिखाता। न कोई था न कोई था कोई है न कोई तुझे सा, न कोई होगा। कोई था कोई है तुझे सा, न कोई होगा। यीशु मसीह आया था तू स्वर्ग छोड़ कर, मेमना तो बलि चढ़ाता उस क्रूस पर। यीशु मसीह आया था तू स्वर्ग छोड़ कर, मेमना तो बलि चढ़ाता उस क्रूस पर। न कोई था न कोई कोई है तुझसा, न कोई होगा। कोई था कोई है तुझसा, न कोई होगा। पावन आत्मा मेरे संग रहता, हर वक्त हर पल मुझको राह दिखाता। पावन आत्मा मेरे संग रहता, हर वक्त हर पल मुझको राह दिखाता। न कोई था न कोई है तुझसा, न कोई होगा। कोई था 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 कोई है तुझसा, न कोई होगा। 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 प्यारे भाइयों, there is a mighty presence of Holy Spirit. Just be silent, just talk to the Lord. प्रभु से बातें करो, शांत रहकर आजमाओ। Bible says, be silent and see, hallelujah, how great is the Lord. Hallelujah. शांत रहो और अनुभव करो कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। उससे बातें करो, दिल से बातें करो, अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दो। अपने कमियों के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है। हम योग्य नहीं है प्यारे भाई और बहनों,
हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। अब यीशु के लहू से उसने खरीद कर हमें अपना बनाया और उसने हमें अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया, स्वर्गराज के वारिस और संतान बनाया। वही परमेश्वर है जो पापियों से प्रेम करता है। वो पापियों को छुड़ाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर होते हुए भी उसने मानव रूप धारण किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Continue to praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah, yes. तुझसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं था। Hallelujah, hallelujah, Jesus, not like you, not like you. No one can be like you. तुझसा कोई नहीं, तुझसा तुझसा कहीं नहीं, तुझसा कोई यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं
नहीं, अब है पूरा यकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं. Come on, sing with us. तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुझ सा कोई नहीं, कोई नहीं, तुझ सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुझ सा कोई नहीं. स्वर्गीय पिता धन्यवाद. Thank you, Lord. Love you, Jesus. हम धन्य हैं Father. कि हमें आप जैसा परमेश्वर मिला. Love you, Jesus. We love you, Jesus. Love you, Jesus. We love you, Father. Love you, Jesus. We Love want you, to be with Dada. you, Jesus. Love you, Father. We want to be with you forever and ever, oh God. Love you, Lord, bless us. Love you, Lord. Bless our children. Love you, Jesus. Bless each and every family, oh God. Bless all in SCM family, oh God. Bless all the people. Love you, Jesus. Bless their families. Bless their jobs. Bless their businesses. Bless their spiritual life. Lord, hallelujah. Anoint them with the Holy Spirit. Lord, hallelujah. Fill them with the spirit of prayer, oh God. Fill them with the spirit of worship, oh God. Lord, let every brother and sister worship you in the spirit and truth, oh God. Hallelujah. You have called us, oh God, to worship you in the spirit and truth, oh God. We want to be your worshipers, oh God. Who will worship in the spirit and truth, oh God. We exalt thy holy name, oh God. We give you glory for your holy name, oh God. Thank you for the wonderful presence, oh God. Touch each and every heart, oh God. Touch each and every heart, oh God. Come on, everybody, hallelujah. Don't just sit, hallelujah. Sit बैठे मत रहो. Oh, प्रभु का आत्मा तुम्हें छू रहा है इस समय. परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है. आप तो मुक्त होकर प्रभु की स्तुति करें. Oh, Jesus, touch each and every mouth, oh God. Let every tongue praise you, Jesus. Let every tongue praise you, Jesus. Let every tongue praise you. Let every mouth praise you. Lord, let thy name be exalted, O God. The King of kings and the Lord of lords. The mighty one of Israel. We worship you, Jesus. We give you glory, O God. You're so wonderful. You're so wonderful, O God. You're so glorious, O God. You're so wonderful, Jesus. Oh, we love you, Jesus. We love you, Father. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Urabadi Rosso Baba. Urabadi Roshika Santa Baba. Utabariala Banadi Rosho Baba Sita Santa Baba. Urabadi Rosho Baba Rihana Baladi Roshika Santa Baba. Ladadi Rosho Baba. Santa Baladi Roshika Santa Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless thee, O Lord. Bless thee, O Lord. Bless thee, O Lord. Bless thee, O Lord. Thank you, Jesus. You are so wonderful, O God. Yes, O God. Yes, Jesus. You give us, O God, beyond our hallelujah, what we ask, O God, and hallelujah, what we imagine, O God.
Yes, oh God, hallelujah. Oh, yes, oh God. We thank you, Jesus. Oh, that hallelujah. You know everything before we ask, oh God, hallelujah. Bless all the families, oh God. Bless each and every one. Fill them with the Holy Spirit. Fill them with the Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Abba, deep your worship. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Oh God, hallelujah. I'm sure God has blessed all, hallelujah. I experienced the mighty presence and the outpouring of the Holy Spirit, hallelujah. And I'm sure God has touched your heart. परमेश्वर ने आपके हृदयों को छू लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच में मैंने महसूस की सामर्थ अभिषेक को, हालेलुया। और अब इस समय हम डायरेक्ट गवाही में जाने वाले हैं। हालेलुया। हमने वर्शिप में ज्यादा समय लिया है क्योंकि ये जरूरी है, जैसे पवित्र आत्मा हमें चलाता है हम चलेंगे। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Holy Spirit is, hallelujah, the president, hallelujah, of the ministry, oh God, hallelujah. Let the Holy Spirit lead everyone, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We'll go for the testimony. Directly we'll enter the testimony. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Brother Raj, हम लोग टेस्टिमनी में डायरेक्ट जाएंगे। ओके। टेस्टिमनी के बाद बच्चों का वचन वगैरह होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ टेस्टिमनी वह मुझे हरी हरी चराइयों में बटाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। भजन संगीता 23 verse 1 and 2। The Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. Psalm 23 verse 1 and 2। I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender and I shall never be defeated. Psalm 62:5. Amen. Conquering His Son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. In all the ways acknowledge Him and He should take the path. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. Isaiah 60 verse 2. टेस्टिमनी ब्रदर, गवाही, राज गवाही। जिनके पास गवाही है अपना हाथ ऊपर करें। जिनके पास गवाही है अपना हाथ ऊपर करें, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक किसी के पास गवाही नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे वचन में। और आज एक
नए विषय पर हम जाएंगे और प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है हम सुने और आशीष पाए। अपना बाइबल हाथ में ले लो, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, वचन को सुनाने के लिए और समझाने के लिए मेरी अगुवाई कर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे छू ले और सुनने वाले मेरे भाइयों को बहनों को तो अपने आत्मा के द्वारा छू और तेरा वचन उनके हृदय में वास करे। पवित्र आत्मा, संपूर्ण रीति से मेरा हृदय, मेरा प्राण, आत्मा, शरीर, मेरा मन तेरे नियंत्रण में सौंप देता हूँ और सुनने वाले मेरे भाइयों को और बहनों को, बच्चों को भी तेरे पवित्र आत्मा में यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ओके, we'll go to book of Matthew chapter 19. We'll go to book of Matthew chapter 19. और आज का विषय है, हमने देखा कि गए दिनों में कि स्वर्ग में हम कैसे दिखेंगे या कैसे होंगे। कि अब हम परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, what we will do and what we will get in the kingdom of God. तो बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य में हम क्या करेंगे और वो प्राप्त करने के लिए, वो अधिकार, जो वो मुकुट, वो प्रतिफल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। कई लोगों के अंदर एक सवाल होता है कि हम विश्वास करने से हमें क्या लाभ होगा, what will have benefit of our faith। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इस तरह से मसीह लोगों को उसका फायदा होने वाला है। हम इतने दुख सहते हैं, परेशानी उठाते हैं, निंदा सहते हैं, हम बहुत कुछ त्याग करते हैं जीवन में प्रभु के पीछे चलने के लिए, क्या मिलेगा हमें। तो ये सवाल 2000 साल पहले चेलों को भी पड़ा था। ये सवाल चेलों को भी पड़ा था कि हमें क्या मिलेगा, हम तेरे पीछे आए हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेगा। तो बाइबल हमें कुछ सिखाती है कि हम परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे और हमें क्या मिलेगा। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27, 28, 29, 27, 28 और 29, 27, 28, read brother Jacob. या brother Jacob या brother பேதுரு அவரை நோக்கி, या இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மை பின்பற்றினோமே, எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றான். அதற்கு இயேசு, மறு ஜென்ம காலத்திலே மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் போது என்னை பின்பற்றின நீங்களும் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களையும் நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாய் 12 சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். என் நாமத்தின் நிமித்தம் வீட்டையாவது, சகோதரையாவது, சகோதரிகளையாவது, தகப்பனையாவது, தாயையாவது, மனைவியையாவது, பிள்ளைகளையாவது, நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனோ அவன் 100 தனியாய் அடைந்து நித்திய ஜீவனையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான்। आमीन। आमीन। हिंदी में पढ़ता हूं। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब इस धनवान युवक ने पूछा कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा भला काम करूं, तो यीशु ने, आपको पता है उस अध्याय में कि उसको कहा कि तुम इस आज्ञाओं का पालन करो, जो आज्ञाएं दी उसका पालन करो। तो बोलते हैं, उसने कहा कि मैं इन सब आज्ञाओं का पालन करता हूं। लेकिन जब धन के बारे में, पैसों के बारे में सवाल आया तो यीशु ने और वचन को कठिन कर दिया और उससे कहा कि धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट के या सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
ऊंट सुई के नाक में से, छेद में से जाएगा, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में जाना मुश्किल होगा। तो ये बात चेलों को बहुत कठिन लगी। उनको लगा तो फिर क्या धन पाना, पैसा पाना या कमाना गलत है? लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि धन पाना या पैसा कमाना गलत है, लेकिन उस पर मन लगाना गलत है। पैसों पर मन लगाना, धन पर मन लगाना गलत है। तो उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल अर्थ निकाला। तो पेत्रस ने सबसे पहले यीशु से पूछा कि हमें क्या मिलेगा? हम सब कुछ छोड़ के तेरे पास आए हैं और अब हम पीछे नहीं मुड़ने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो यीशु उन्हें उनके सवाल का जवाब दे देता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आई टेल यू ट्रूथ। ओके, ये सच सत्य है कि नई सृष्टि में, इन द रीजनरेशन, इन द एज ऑफ रीजनरेशन, उसके एक तरीके की मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में के सिंहासन पर बैठेगा। ओके, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यानी कि विश्वासियों को एक सिंहासन है, एक जगह है, एक अधिकार है। जैसे कि बाइबल में कई जगह कहा है कि तुम जगत का न्याय करोगे। ओके, कुरिन्थियों की पत्री में 3 अध्याय में कहा लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि विश्वासी जन जगत का न्याय करेंगे? सो यहां कहता है कि सबसे पहली बात कि मैंने तुम्हें राजे और पुरोहित तो बनाया, तो कि तुम मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिन जिन लोगों ने भाइयों घरों को, ओके, किसी ने घरों को, अपने भाइयों को, बहनों, पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम से, खेतों को इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय इंडस्ट्री नहीं थी, लोग खेती ही सब करते थे, पूरी दुनिया में खुद खेती होती थी। ओके, सो खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। सो यहां बाइबल स्पष्ट कहती है कि हमें क्या मिलेगा। तो पहला अधिकार, पहली बात वो उनसे कहता है कि तुमने जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए हैं, तुम्हें सिंहासन मिलेगा। और सिंहासन एक अधिकार को दर्शाता है। सिंहासन जगह मिलेगा, एक पद मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा, एक कार्य प्रणाली होगी। आपको कुछ परमेश्वर के राज्य में काम मिलेगा और वो कहता है कि तुमको ये सारी बातें मिलेगी। हम देखते एक जगह कुरिन्थियों की पत्री में, मैं को ढूंढता हूं, 1 Corinthians chapter 6, verse 2 and 3. 1 Corinthians chapter 6, verse 2 and 3. Read. பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் என்று அறியீர்களா? உலகம் உங்களால் நியாயம் தீர்க்கப்படுவதா இருக்க அற்ப வழக்குகளை தீர்க்க நீங்கள் அபாத்திரரா? தேவ தூதர்களையும் நியாயம் தீர்ப்போம் என்று அறியீர்களா? அப்படி இருக்க இந்த ஜீவனுக்கு ஏற்றவர்களை நீங்கள் தீர்த்து கொள்ள கூடாதிருப்பது எப்படி? Amen. So ये वचन स्पष्ट करता है कि विश्वासियों को क्या काम करना है स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, 1000 साल के राज्य में। जब हम इस धरती पर होंगे यीशु के साथ, तो हमें क्या करना होगा? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग, तुम और हम जो पवित्र लोग, जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? इनके बीच में झगड़े हो रहे थे और इनके झगड़े इन्होंने कहां तक पहुंचाए? अविश्वासियों के लोगों के तक पहुंचाए, ऐसे लोगों के पास पहुंचाए जो कलीसिया में कुछ है भी नहीं और उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई स्थान नहीं है। इनके झगड़े दुनिया में चले गए, इतने झगड़े उनके बीच में होते थे।
पौलुस उन्हें कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि विश्वासी लोग जगत का न्याय करेंगे? ओके, सो यहां ये वचन स्पष्ट दिखाता है कि व्हाट वी विल डू इन द किंगडम ऑफ गॉड, कि हम लोग इस जगत का न्याय करेंगे। जो आज पापी लोग इस जगत में हैं, और फिर बाद में जो हम जब इस दुनिया में रहेंगे, और उस वक्त जो दुनिया फिर से बनेगी, और फिर जब पृथ्वी पर कई सारे करोड़ों लोग पैदा होंगे, हम उनका न्याय करेंगे। हम स्वर्गदूत का भी न्याय करेंगे, ये पतित स्वर्गदूत, उनका भी हम न्याय करेंगे, ऐसा वचन कहता है। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम जब जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन प्रभु उन्हें कहता है कि जिन जिन लोगों ने घरों को छोड़ा है, माता पिता भाई बहन नौकरियों को छोड़ा है, उनको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे भाइयों और बहनों, आपने जो दुनिया को छोड़ दिया, हमने इस समाज को छोड़ दिया, यानी कि हमने सारे रीति रिवाज को छोड़ दिया, हमने सारे त्योहारों को त्याग दिया, हमने जगत के रीति रिवाजों को छोड़ दिया, जगत के सारे मौज मजाक को छोड़ दिया, जगत की सारी बुराइयों को हमने छोड़ दिया। और ये क्या कुछ ये क्या कम है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में हम लोग थिएटर में पिक्चर देखने को नहीं जाते? प्रेज द लॉर्ड। थिएटर में जाकर वो गंदी जगह पर हम नहीं बैठते हैं, ना हम कुछ और जगह पर बार में जाकर बैठते, दारू पीते हैं, ना व्यभिचार के अड्डे में जाते हैं, ना चोरी करते हैं, ना खून खराबा करते हैं। तो ये सारी बातें हमने छोड़ दी हैं। हमें कई बार अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा, हमारे प्यारे रिश्तेदारों को हमको छोड़ना पड़ा, या उन्होंने हमको छोड़ दिया, क्योंकि हमने सच्चाई पर विश्वास किया। तो हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा, और आपको परमेश्वर जगत का न्याय करने के लिए चुना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा क्या क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं। सो ये एक सवाल हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देता है, और हमें समझता है कि हमें स्वर्ग के राज्य में क्या मिलने वाला है। ओके, उसी अध्याय में, उसी पुस्तक में हम जाएंगे 25, 25 और 21। 25, मैथ्यू 25 वर्स 31, 25 वर्स 31। அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதரோடும் கூட வரும்போது தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார்। ओके, मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। ये स्वर्गदूत कौन? हम लोग होंगे, ये हमारे बारे में लिखा हुआ है, हम उसके साथ आने वाले हैं। तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल स्पष्ट कहती है कि वो हम उस सिंहासन पर उसके साथ विराजमान होंगे। प्रेज़ गॉड। मैथ्यू 16:27, मैथ्यू 16:27। एक रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूं, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। மனுஷகுமாரன் தம்முடைய பிதாவின் மகிமை பொருந்தினவராய் தம்முடைய தூதரோடும் கூட வருவார்। அப்பொழுது அவனவன் கிரியைக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் Amen, amen, praise the Lord। ने पूछा ना हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ जब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार, प्रेज द लॉर्ड, बोलो कामों के अनुसार, जस्ट रिपीट विथ मी, हालेलुया, कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। क्या देगा? प्रतिफल, रिवॉर्ड। यू विल गेट रिवॉर्ड इन हेवन, इन द किंगडम ऑफ हेवन। सो आप और हम ऐसे ही नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रतिफल देगा। तो ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर हमें उसके राज्य में प्रतिफल देने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो इस तरीके से प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें जरूर कहेगा। रीड 34 इन चैप्टर 25 में, चैप्टर 25 34 34 yeah 34 35 36
34 to 36 पढ़ना। அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து, வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். பசியா இருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். தாகமா இருந்தேன், என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். அந்நியனா இருந்தேன், என்னை சேர்த்துக் கொண்டீர்கள். வஸ்திரம் இல்லாது இருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். வியாதியா இருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள். காவலில் இருந்தேன், என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்பார். அப்பொழுது நீதிமான்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மை பசியுள்ளவராக கண்டு உமக்கு போஜனம் கொடுத்தோம், எப்பொழுது உம்மை தாகமுள்ளவராக கண்டு உம்முடைய தாகத்தை தீர்த்தோம். आमेन। राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, दाहिने वार यानी कि हम लोग भेड़ों के लिए प्रभु का वचन कहता है, वी आर द शिप। दाहिने ओर, वी विल बी द राइट हैंड ऑफ गॉड। ओके, यहाँ डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। राइट हैंड में प्रभु के लोग दर्शाते हैं, दाहिने वालों के लोग से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। So there is a kingdom. What you will get, we will be the part of kingdom. Okay, वो दाहिने वालों से कहेगा, पिता के धन्य उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। Possess that kingdom which is prepared from the beginning of the world. Okay, जगत के आदि से, before the foundation of the world. यानी कि परमेश्वर का ज्ञान देखो, before the foundation of the world, God has chosen us and God had planned to give us His kingdom. So now at the end of this world, God has chosen us in Him. प्रभु ने हमें उसमें चुना है to become the part of His kingdom. Okay, the heir of His kingdom. Okay, तो आदि से, क्योंकि मैं भूखा था, ओके, ये हमारे लिए, प्रभु के लोगों के लिए, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं परदेसी था और तुमने मुझको घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि दी। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये विश्वासियों के काम है। प्रतिफल चाहिए, प्रतिफल चाहिए, ये विश्वासियों के काम है। लेकिन मैं सुनता हूं कि आज, अब मैं देखता हूं पूरी दुनिया भर में, हमारे यहाँ नहीं, सब जगह आज परिस्थिति अलग है। कुछ लोग हैं जो आज भी जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना सब कुछ छिपा के रखते हैं। वो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं, वो सिर्फ अपनों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। उन्हें कलीसिया के बारे में या कलीसिया के लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा हर चीज में दौड़ कर आते हो, गरीबों की सेवा करते हो। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बिलीवर बन के बैठे हुए हैं, नाम के बिलीवर बन के बैठे हुए हैं। उन्हें गरीबों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, गरीबों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, और उन्हें कुछ इज्जत नहीं है उनके प्रति। लेकिन प्रभु कहता है, आओ पिता के धन्य लोगों, तुम्हारे लिए मैंने एक राज्य तैयार किया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तो उन्होंने पूछा, धर्मी लोगों ने पूछा, धर्मी उत्तर देकर कहते हैं कि प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदूकरों में देखा, मुझसे मिलने आए? तब राजा यानी कि यीशु मसीह हमें उत्तर देकर कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वाओ, आया समझ में आपको? कहता है कि इन छोटे में से छोटे लोगों में से तुमने जिनके साथ ऐसा किया, वो सब मेरे साथ किया। यानी कि जो कुछ तुम कलीसिया के लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ भलाई करते हो, वो तुम उसके साथ नहीं, प्रभु के साथ करते हो। तुम उनको कपड़े देते हो, तुम उनको खाना खिलाते हो, तुम उनकी सुधि लेते हो, तुम उनके बीमारी में उनको विजिट करते हो।
तुम उनके कष्टों में उनकी सूटी लेते हो, तो प्रभु कहता है तुमने वो उनके लिए नहीं मेरे लिए किया। लेकिन हमारे भाई बहन क्या करते हैं, हमको टाइम नहीं है बात करने के लिए, पास्टर हमको टाइम नहीं है। आज सोचो इस बात पर, हम अंतिम समय में खड़े हैं, सोचो हम किस तरह जी रहे हैं, हाँ किस तरह जी रहे। क्या हम आज हमारा बोझ ही हमारे लिए काफी ज्यादा हो गया है कि हम दूसरों के लिए जीना या दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। सालों सालों से हम वैसे ही जैसे वे पहले थे वैसे ही हैं, कोई किसी के साथ संबंध नहीं है। हम अपने हट पर जीते हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों उसके सामने झुकूं। नहीं, ये अहंकार है, इस अहंकार को हमें मिटाना है, तोड़ देना है। तो दूसरों के लिए प्रभु कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मेरा वचन नहीं, तुम्हारे मेरे प्रभु का वचन है। हमें जरूरतमंद लोगों के घर में भी जाना चाहिए, और जा नहीं सकते तो एटलीस्ट फोन करके पूछ सकते हैं, एटलीस्ट फोन करके पूछ सकते हैं कि बाबा क्या चल रहा है तुम्हारा, हालेलुया। ओके, जैसे गए दिनों में तुमने मुझे फोन किया, मेरी हालत, तबीयत ठीक नहीं थी, आप मेरे घर पे आए, कुछ लोग मुझे मेरी चौकसी की और मुझे प्रेम दिया। आपने वो मेरे लिए नहीं किया, आपने प्रभु के लिए किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा जरूर, हालेलुया। आपने मेरे लिए प्रार्थना की, ये आपने मेरे लिए नहीं प्रभु के लिए की, तो आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। वैसे ही कलीसिया में भी जैसे आप मेरे साथ करते हो, एक दूसरे के साथ भी आप करें। हम थोड़े लोग हैं, छोटी सी कलीसिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये प्रभु कहता है कि जो तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया, वो तुमने मेरे ही साथ किया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यू एंड मी आर द पार्टनर विद द लॉर्ड, हम प्रभु के साथ पार्टनरशिप में हैं, हम उसके बिजनेस में पार्टनरशिप, जैसे कि आप अपनी कंपनी में मालिक के साथ पार्टनरशिप करते हो, आप काम करते हो, कंपनी के लिए मुनाफा कमा के देते हो, जी जान से काम करते हो, 12 घंटे 14 घंटे भी ड्यूटी करते हो, ये सब तुम पेट के लिए करते हो और अपने मालिक के लिए करते हो। लेकिन स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लिए आपको ये भी काम करने हैं, हालेलुया। अभी घर में बैठ से नहीं, 5 महीने से मैं आता जाता हूँ गरीबों के बीच में और उनको वचन सिखाता हूँ। मुझे कोई कोरोना प्रभु ने लगने नहीं दिया, हालेलुया। पूरी दुनिया रास्ते पर उतर गई है, अब कोरोना का डर चला गया, हालेलुया। तो निकलो बाहर, हमें प्रभु ने बुलाया है प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को मिलने के लिए, उनका सुख दुख दर्द बांटने के लिए बुलाया है, प्रेज़ गॉड। सो मेरे भाई और बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है। अब हम देखते हैं ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। लूका की सुसमाचार 22 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 29-23। ओके, 29 and 22, 29 first. yeah, just a minute, 29 and 30, 29 and 30। ஆகையால் என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினது போல நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறேன். நீங்கள் என் ராஜ்யத்திலே என் பந்தியில் போஜனபானம் பண்ணி இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களையும் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हो गया ना, थोड़ा बाकी है। या இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களையும் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காருவீர்கள் என்றார்। ஆமென், आमेन। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां खाना पीना भी होगा, हाँ, कलीसिया की शादी प्रभु के साथ होगी, हम प्रभु के साथ रहेंगे, तो वहां खाना पीना भी होगा। मेरे बाइबल कहते हैं, यीशु झूठ नहीं कहता है ना, वहां मेज होगा, वहां हम उसके साथ मेज पर बैठकर खाएंगे, क्योंकि हम दुल्हन है और दुल्हन की जगह दूल्हे के साथ में होती है, दूल्हे से दूर नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम दुल्हन है ना, हम दुल्हन है, वी आर द ब्राइड एंड ही इज द ब्राइडग्रूम।
सो हमारी जगह यीशु के साथ होगी, उसके साथ हम रहेंगे, उसके राज्य में उसके करीब रहेंगे, उसके मेज पर पे हम खाएंगे पिएंगे। ठीक है, मेरे लिए परमेश्वर पिता ने एक राज्य ठहराया, मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ और उसने हमारे लिए राज्य ठहराया है। क्या मिलेगा हमें? किंगडम मिलेगा, बिना इलेक्शन लड़े हुए। प्रेज गॉड, हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है और हमारा राज 5 साल का नहीं रहेगा। कब तक का रहेगा? हमारा राज अनंत काल का रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, वो राज का कभी अंत नहीं होने वाला है। सो प्यारे भाई और बहनों, ये पेतरस का जो उत्तर सवाल था उसका उत्तर है। और हमें क्या मिलेगा, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए और हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि मुझे उत्तम से उत्तम प्रतिफल और उत्तम से उत्तम जगह प्रभु के राज्य में मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये वचन साबित करता है कि हम स्वर्ग में और क्या करने वाले हैं और हमें क्या मिलने वाला है। प्रेज गॉड। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21। बुक ऑफ रेवलेशन 3:21 3:21 நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதானுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடே கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன்। ஆமென்। 22 भी पढ़ना, जिसके कान हैं या ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று எழுது என்றார்। किसको कहता है प्रभु यीशु मसीह? किसको कहता है? कलीसिया से कहता है। ही इज टॉकिंग टू द चर्च। और क्या लिखा है? जो जय पाएगा, he who is victorious, जो जय पाता है वो मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठा हूँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर विराजमान या फिर से बैठ गया। Amen. He is already on the throne. Jesus is already on the throne and he is in control of the whole world. He is controlling the whole church. He is controlling all the nations. वो सारे राज्यों को, राष्ट्रों को, दुनिया को पूरे नियंत्रण में रखे हुए हैं। हालेलुया। उसके बिना कुछ नहीं होता है धरती पर। वो कहता है कि जैसे जो जय पाएगा, जैसे मैंने जय पाई, यीशु कहता है मैंने मृत्यु पर जय पाई, आपने भी विश्वास के द्वारा मृत्यु पर, शैतान पर जय पाई है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तो जय पाने वालों के लिए प्रभु का वचन कहता है आपको भी सिंहासन बैठाया जाएगा। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। The same book, chapter 4 verse 4. 4 verse 4. Yeah. அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்ததையும் சிங்காசனத்தில் இருந்து 24 மூப்பர்கள் வெண் வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன்। Amen. हालेलुया। ये 24 सिंहासन जो है और सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इस सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, बैठे हुए और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। ये 24 प्राचीन है, ये कलीसिया के प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है, वो अधिकार को दर्शाते हैं, वो प्रतिफल को दर्शाते हैं। मुकुट हमने भी दिनों में आपको मुकुट के बारे में सिखाया ना, 5 मुकुट के बारे में सिखाया था। तो इनके सिरों पर सोने के मुकुट है जो अधिकार को दिखाते हैं, प्रतिफल को दर्शाते हैं और महिमा को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से विश्वासियों को जो सिंहासन पर बैठेंगे उनके सिर पर सोने के मुकुट रहेंगे जो उनका अधिकार दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये एक और ऐसी बात है कि हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में क्या मिलेगा। Book of Revelation chapter 20 verse 4. Again verse 4. 24. Yeah, 24. அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன், அவைகளின் மேல் உட்கார்ந்தார்கள்,
நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது. இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தமும் சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சொரூபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன். அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனே கூட 1000 வருஷம் அரசாண்டார்கள். ஆமென். Amen. वाओ, बहुत सुंदर। फिर मैंने सिंहासन देखे, यानी कि कई सारे सिंहासन देखे। एक नहीं, कई सारे अनगिनत सिंहासन हर एक विश्वासी के लिए, और उन पर लोग बैठ गए। ये लोग कौन है? तुम और हम। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। जैसे कि अभी आपको मैंने सिखाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ लिखा है उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न तो उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। दे आर द ट्रिबुलेशन सेंट्स। ये वो लोग हैं जो 7 साल के महासंकट के बीच में मारे गए थे, जिन्होंने उस शैतान का 666 आंकड़ा या नंबर माथे पर और हाथ पर नहीं लिया था और मारे गए थे। वे ही सिर्फ जीवित हो जाएंगे, बाकी नहीं जीवित होंगे। बाकी नहीं, जो अविश्वास में हमारे वो जीवित नहीं होंगे। हेलो, सब लोग ध्यान दे दो इधर। किसी को आलस आ रहा है, किसी को क्या क्या हो रहा है इधर। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ देखो, आपका वचन आपके बाइबल में, आप देखो ना, आपके बाइबल में देखो, आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, ध्यान देकर सुनो। ओके, बाइबल कहती है कि वे कौन? जो महासंकट के बीच में, काल में विश्वास में मारे गए, यीशु के गवाही देने के कारण उनके सिर काटे गए, यहां से सिर धड़ से अलग कर दिए गए। ऐसे लोग जब यीशु मसीह हमें लेकर वापस आएगा, तब ये लोग जिलाए जाएंगे और वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ओके, तो इस रीति से परमेश्वर हमें क्या देगा? न्याय करने का अधिकार देगा। हम सब इस जगत का न्याय करेंगे। हमें एक इज्जत और बड़ा प्रतिफल रहेगा और हमें एक बड़ा स्थान मिलेगा स्वर्ग में। जो विश्वास में है और जो जय पाते हैं, वो कहते हैं मेरे सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, इस रीति से हम देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं, वे जो इस धरती पर प्रभु के खातिर दुख सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, जिनको बहुत कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, और जिन्होंने प्रभु के खातिर बहुत कुछ छोड़ दिया है, और ऐसे लोग जिन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा कई बार प्रभु की सेवा में होते हुए, उन्हें धोखा दिया गया हो या उनका कुछ छीना गया हो या उन्होंने प्रभु के सेवा के लिए कुछ त्याग किया हो, उन लोगों को स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए कोई नाराज न हो जाए। कई बार हम अपनी जिंदगी में नाराज हो जाते हैं, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया, प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, उनका अच्छा हुआ मेरा अच्छा नहीं हुआ। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर कुछ कमियां होती है। कई बार हम अपनी कमियों के वजह से अपने आशीष को हम खो देते हैं, हमें वो आशीष मिलने के लिए समय लगता है। इसलिए आज्ञा पालन करो, प्रभु के अधीन हो जाओ और अपना मन परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मेरा मन और हृदय परिवर्तन हो जाए। जो भी मुझ में अभी कुछ बाकी है, जो कुछ मेरे अंदर छिपी हुई दुष्टता है, अहंकार है, लोभ या लालच है, या क्रोध करना, बलवा करना, ये स्वभाव अगर होगा तो प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकाल। मैं पश्चाताप करता हूँ, तेरे पास आता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आने से पहले हमें अपने जीवन में पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम कई चीजों में चूकते हैं और गलत काम करते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, मैं इतने सालों से प्रभु के साथ हूँ,
मैं इतना दुख सहता हूँ, मैं इतने आर्थिक तौर पर संकट और कष्ट में जाता हूँ, मैं कई बार मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मुझे क्या मिलेगा? मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं, मैंने त्यागा नहीं। तुमने त्यागा नहीं, तुमने प्रभु को छोड़ा नहीं, इसका मतलब कि तुम विजयी हो। यू आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस। और इसलिए प्रभु तुम्हें जरूर जय दे। जो जय पाते हैं वो सिंहासन पर बैठेंगे और प्रभु के साथ उन्हें बड़ा अधिकार मिलेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। अगले संडे हम थोड़ा इसमें और आगे जाएंगे कि प्रभु और कुछ उदाहरण देकर हमें क्या क्या सीख रहता है, इसके द्वारा हम देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा और कैसे हम प्रभु की ओर से प्रतिफल पाएंगे। तो आज के दिन के लिए ये वचन आप ग्रहण करो। जिन्होंने वचन सुना है विश्वास करो, प्रभु को धन्यवाद दे दो और प्रभु जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के भंडार में अपनी भेंट अर्पण करेंगे। जिन्होंने अभी तक अपना दान दशमांश नहीं दिया होगा, जो दे सकते हैं और दिया नहीं है, उनको उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आप प्रभु की सेवा के खातिर दिया करो और परमेश्वर जरूर आपके भंडारों को भर देगा और नाश करने वालों को प्रभु घुड़केगा, डांटेगा और तुम्हारे पैसे का धन का नाश नहीं होगा और स्वर्ग में तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। यीशु मसीह के नाम से सारा आदर महिमा देता हूं। जो बीज बोया गया है उस बीज पर तो अपना आशीष दे। इन वचनों के द्वारा तेरे लोगों की सहायता कर और प्रभु अच्छा प्रतिफल पाने के लिए प्रभु परमेश्वर तेरे लोग काम करे मेरे प्रभु पिता। हालेलुया। जैसे तूने हमें सिखाया कि जब मैं भूखा था मुझे खाने दिया, मैं नंगा था मुझे वस्त्र पहनाया, जब मैं बीमार था मिलने आए। हालेलुया मेरे प्रभु पिता, उस तरीके से हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए सहायता करना मेरे प्रभु पिता। इन सब लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और प्रभु जो भेंट उन्होंने उनके घर में निकाली है तेरे भंडार में देने के लिए, वो भेंट को स्वीकार कर, आशीषित कर और उनकी सारी जरूरतें स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना और विनती करता हूँ। पिता तो अपने दया और करुणा से सुन और ग्रहण कर। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बना रहे। आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். आमेन। सबको हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह। हालेलुया. अपना अपना दान दशमांश अपने बैंक अकाउंट में